Assalamu class. Welcome to online lectures on computer communication networks. This is week number 6. This week we will talk about chapter 11, data link control. In this chapter we will look into framing, frames of fixed and variable length of sizes. Communication using variable length frame protocol will be further discussed. Next we will discuss basics of flow and error control and protocols to transfer frames in noiseless channels using protocols like simplest and stop and wait, and for noisy channel protocols which can handle errors if occur during transmission of framing using automatic repeat request called ARQ, which is stop and wait and go back n and selective repeat. Similarly, we will further discussion on how our communication protocols like HDLC communicate using frames, and we will also include a little bit about authentication protocols of communication. So before we proceed and discuss framing, let's first check the basics on second layer of OSI, which is data link layer, and its two parts, data link control and media access control. Media access control we will further discuss in next chapter. So let's move on and talk a little bit about framing and its role. So the two main functions of the data link layer are data link control and media access control. The first, data link control, deals with the design and procedure of communication between two adjacent nodes, which is basically node to node communication. So data link control functions include framing, flow and error control, and software implementation of the protocols that provide smooth and reliable transmission of frames between nodes. To implement data link control, we need protocols. Each protocol is a set of rules that need to be implemented in software and run by the two nodes involved in data exchange at the data link layer. So let's move on from the basics of data link layer and check out how framing can help us. So data transmission in the physical layer means moving bits in the form of signals from a source to destination. The physical layer provides bit synchronization to ensure that the sender and receiver use the same bit durations and timing. तो इसका मतलब है कि बिट्स जो हैं वो मूव करेंगी फिज़िकल लेयर पे और वो आपकी बिट्स को लेके जाएंगी फ्रॉम सोर्स डेस्टिनेशन. सो हमें पता है कि जो फिज़िकल लेयर होती है वो बिट सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करती है और इंश्योर करती है कि सेंडर और रिसीवर जो है उनकी पास की बिट की ड्यूरेशन और जो उसकी टाइमिंग है वो सेम है ताकि गलती ना हो बिट को रीड करने में. तो ये जो बिट्स जानी है आपकी सेंडर से रिसीवर के बीच में, इनकी जो पैकिंग है वो डाटा लिंक लेयर करता है. सो दैट ईच फ्रेम इज़ डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अनदर. तो हम लोग फ्रेम्स को डिस्टिंग्विश कर सकें जी के डाटा जो है हमारा वो किस तरह आ रहा है फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीवर. अगर देखा जाए तो हमारा जो पोस्टल सिस्टम है वो भी इसी तरह काम करता है. वो भी प्रैक्टिस करता है फ्रेमिंग को. और द सिंपलेस्ट एक्ट ऑफ इंसर्टिंग अ लेटर इन एनवेलप सेपरेट्स वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अनदर. तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एनवेलप के अंदर एक लेटर डालते हैं तो अंदर वाली इन्फॉर्मेशन को ऊपर वाला लेटर जो होता है वो छुपा लेता है. और जो एनवेलप होता है आप लोगों का वो एक डिलिमिटर के तौर पे एक्ट करता है कि अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी उस लेटर के बारे में तो आप सिर्फ और सिर्फ ये देख सकते हैं कि लेटर कहाँ सेंड किया गया है और किसको रिसीव करवाना है. अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप नहीं देख सकते. तो फ्रेमिंग जो है आपकी डाटा लिंक लेयर के ऊपर वो सेपरेट करती है मैसेज को फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन. और क्योंकि इसके दरमियान में जो ट्रांसमिशन होती है वो मल्टीपल कैरियर से होकर जानी होती है जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कैरियर्स होते हैं डाटा लेके जाने के लिए. तो लेटर के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस होता है कि पैकेट ने या लेटर ने कहाँ जाना है और सेंडर की इन्फॉर्मेशन होती है कि जी के किसने उसको भेजा है, रेसिपिएंट कौन है उसका बेसिकली, और अगर वो एक्नॉलेज करेगा तो वो उस एड्रेस पर उसको रिप्लाई करेगा ना. पोस्टल सर्विस में तो आप लोग अपना सारा जितनी भी कम्युनिकेशन होती है आप लोगों की आप उसको एक लेटर में लिख के एक पैकेट में डाल के भेज देते हैं. लेकिन रियल कम्युनिकेशन जो नेटवर्क के ऊपर होती है उसमें हम इस तरह नहीं कर सकते. वन रीज़न इज़ दैट फ्रेम्स कैन बी वेरी वेरी लार्ज. और फ्रेम जब लार्ज होते हैं तो इट मेक्स द फ्लो एंड एरर कंट्रोल वेरी इनएफिशिएंट. तो हमारे पास गलतियाँ हो सकती हैं ट्रांसमिशन के दरम्यान में. तो उस इनएफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए हम लोग फ्रेम्स की जो साइज़ होते हैं उसको ज़्यादा हम लार्ज नहीं रखते. तो हमने पहले प्रीवियसली चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था वो ये कि जी के हम लोगों के पास एक एरर भी आ जाता है
तो जो हमारा मैसेज है वो डिस्कार्ड किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए फ्रेम्स को डिवाइड कर लेते हैं मल्टीपल में, और उनके ऊपर फिर हम लोग सिंगल बिट के लिहाज से हम लोग उनके ऊपर चेक लगा देते हैं। और अगर हमारे पास मल्टीपल फ्रेम्स होंगे तो हम देख सकते हैं कि सिंगल बिट एरर इफेक्ट ओनली स्मॉल फ्रेम। तो हमें इतनी बड़ी ट्रांसमिशन दोबारा नहीं करनी पड़ेगी अगर उसमें एरर निकल आता है हमारे पास तो। So next we got a fixed size framing. So a frame can be of fixed and variable size. In fixed size framing, there is no need to define the boundaries of the frame. The size itself can be used as a delimiter. उसकी एग्जांपल हमारे पास ATM, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोग यूजली फिक्स साइज ऑफ फ्रेम इस्तेमाल करते हैं। ATMs हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, प्रॉब्ली लेटर इन चैप्टर्स, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर। हमारी जो मेन डिस्कशन होगी वो वेरिएबल साइज फ्रेमिंग के ऊपर होगी, और ये जितना चैप्टर भी हम पढ़ेंगे इसमें सारा कंसर्न हमारा वेरिएबल साइज फ्रेमिंग ही होगा। और वेरिएबल साइज फ्रेमिंग जो होती है वो हम देखेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इन वेरिएबल साइज फ्रेमिंग वी नीड अ वे टू डिफाइन द एंड ऑफ द फ्रेम एंड बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन। तो हमें बताना होता है फ्रेम कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, और अगला फ्रेम कहाँ से स्टार्ट होगा। तो अगर देखा जाए तो जो मेथड्स हम इस्तेमाल करते आए हैं उसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है हमारे पास जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं करेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच, और एक है जिसमें हम लोग बिट ओरिएंटेड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जो हमारे पास होती हैं, इसमें जो हमारा डाटा मूव किया जाता है, जो हम कैरी करते हैं, वो 8 बिट के ऊपर बेस्ड होता है। और 8 बिट कोडिंग जो होती है बेसिकली वो ASCII की तरह की होती है। उसमें हमारे पास हेडर होता है विच नॉर्मली कैरीज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेसेस, और उसके अलावा अदर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर होती है। और उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ जो होती है उसको हम बोलते हैं ट्रेलर, विच कैरीज एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन रिडंडेंट बिट्स। तो रिडंडेंसी होती है जो कि एक बर्डन है उसके ऊपर, वो हम लोग टेल में डाल देते हैं। और ये भी मल्टीपल ऑफ 8 ही होता है। टू सेपरेट वन फ्रेम फ्रॉम द नेक्स्ट, एन 8 बिट मतलब एक बाइट जो होता है इज एडिड एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द फ्रेम। तो वो जो एंड और बिगनिंग की जो हम लोग 8 बिट्स लगाते हैं उसको हम लोग फ्लैग बोलते हैं। और ये जो फ्लैगिंग होती है आप लोगों की, ये बेसिकली आप लोगों की प्रोटोकॉल डिपेंडेंट होती है। और ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ द फ्रेम को डिफाइन करते हैं। तो करेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग जो थी वो ज़्यादा पॉपुलर थी जब आप लोग टेक्स्ट को एक्सचेंज कर रहे होते हैं बिटवीन डाटा लिंक लेयर्स। ये फ्लैग जो होते हैं कुड बी सिलेक्टेड टू बी एनी करेक्टर नॉट चूज फॉर टेक्स्ट कम्युनिकेशन, तो कोई भी करेक्टर लिया जा सकता है। नाउ हाउएवर द वी सेंड अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज ग्राफ, ऑडियो और वीडियो भी अगर हम लोग भेजना शुरू कर दें फ्रेम्स के अंदर, एनी पैटर्न यूज फॉर द फ्लैग कुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ये जो फ्लैग में हमने जो 8 बिट्स रखे थे हम लोगों ने, ये आपके डाटा के बीच में भी आ सकते हैं, सेम बिट पैटर्न। तो अगर ऐसा होगा तो आपको पता है कि अगर आपका रिसीवर को इस तरह का फ्लैग मिले और वो फ्लैग डाटा के बीच में हो, तो आपका रिसीवर जो है वो उसको डिकोड करेगा कि आपका जो फ्रेम है वहाँ यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और इसके बाद वो नेक्स्ट फ्रेम के लिए डाटा रीड करना शुरू कर देगा, और यहाँ पे हमारे पास गलती हो सकती है। टू फिक्स द प्रॉब्लम, अ बाइट स्टफिंग स्ट्रेटजी वॉज एडेड टू करेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, बाइट स्टफिंग क्या होती है, उसमें हम लोग एक स्पेसिफिक पैटर्न को उठा के डाटा के बीच में डाल देते हैं अगर वो सेम हो जिस तरह का आपका फ्लैग है। तो आपके डाटा सेक्शन के हम लोग एक एक्स्ट्रा बाइट डाल देते हैं जो कि स्पेशल बाइट होती है। और ये जो हमने स्पेशल बाइट डाली बीच में, इसको हम लोग बेसिकली स्केप बोलते हैं। तो अगर आपके डाटा के बीच में रिसीवर जब उसको डिकोड करेगा और देखेगा जी कि बीच में एक स्केप का करेक्टर आ रहा है, तो वो उसको निकाल देगा, और उसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट होगा आपके पास डाटा, वो उसको एज अ पार्ट ऑफ पेलोड कंसिडर करके रीड करेगा। तो इसको रिमूव करके जो रिसीवर होगा वो उसको पता चल जाएगा कि ये डिलिमिटिंग फ्लैग नहीं है, या डीलिमिटर फ्लैग नहीं है आप लोगों का, जो कि फ्रेम एंड करता है। जो स्केप पैटर्न होता है वो बिल्कुल फ्लैग की तरह का होता है। तो अगर आप देखें तो पता से चलता है कि जी के आपका जो डाटा होता है उसके अंदर हम लोग फ्लैग का पैटर्न जिसको हम स्केप बोल रहे हैं वो डाल दिया जाता है। तो इसमें हमें एक और मसला भी क्रिएट होता है, व्हाट हैपन्स इफ़ द टेक्स्ट कंटेन्स वन और मोर escape करेक्टर्स फॉलोड बाय अ फ्लैग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने टेक्स्ट भेजा है और इस टेक्स्ट के अंदर आपके जो करेक्टर्स जा रहे हैं उसमें आपने escape करेक्टर डाल दिया जो कि फ्लैग की तरह का था, ताकि सिस्टम कहीं ये ना डिटर्मिन कर ले कि जी के फ्रेम एंड हो गया।
तो वो स्केप का करेक्टर डाटा में से निकाल देगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो डाटा है उसके अंदर वो करेक्टर इटसेल्फ शामिल हो, मतलब आपके वर्ड का पार्ट भी तो हो सकता है ना। तो अगर ऐसा होगा तो अगर वो करेक्टर दोबारा आएगा तो आपका जो रिसीवर होगा वो उसको डिकोड करेगा एज अ फ्लैग और वहाँ पे आपका फ्रेम को ख़त्म कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर सकें कि जी कि ये जो आपने स्केप निकाला है, स्केप करेक्टर निकाला है जो कि हमने एक पैटर्न देखा था जी जो कि फ्लैग की तरह का था, तो डाटा जो था वो ना कम हो जाए, माइनस हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि स्केप करेक्टर के बाद एक जो डाटा है उसके अंदर एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और डिफरेंट किस्म का स्केप करेक्टर डालेंगे जो बताएगा कि जी कि ये जो करेक्टर है ये पार्ट ऑफ टेक्स्ट है। तो लेटर हमने देखा कि जी के करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स जो थी उनके अंदर हमारे पास एक डाटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा था। वो प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जी हम लोग जब यूनिकोड की तरफ जा रहे हैं, यूनिकोड जो है आपको पता है वो 16 बिट या 32 बिट करेक्टर की तरफ जा रहा होता है, तो उसमें हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आया था 8 बिट करेक्टर्स के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ की बुनियाद के ऊपर करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल को छोड़ के हम लोग बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की तरफ चल जाते हैं जो कि हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। सो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, the data section of the frame is a sequence of bits to be interpreted by the upper layers as text, graphic, audio, video, and so on. However, in addition to headers and possible trailers, we still need a delimiter to separate one frame from the another. तो हम लोगों ने bit oriented protocol के लिए हम लोगों ने सीक्वेंस ऑफ बिट्स को तो डिफाइन करवा दिया जो कि हेडर और फुटर में आ रही हैं, लेकिन हमें ये भी बताना है कि डिलिमिटर के लिए कि जी के फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से स्टॉप हो रहा है, तो उसमें भी हम लोगों को बिट्स डालनी होती हैं। और वो देखा जाए तो प्रोटोकॉल के लिहाज से एक स्पेशल 8 बिट का हम लोग फ्लैग डालते हैं बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स या फ्रेम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। वो ज़ीरो के बाद हमारे पास 6 1 और फिर ज़ीरो होता है, जो कि अगर आप यहाँ देखें तो आप लोगों को यहाँ पे वो फ्लैग नज़र आ रहा है जो कि एक स्पेशल करेक्टर है। लेकिन अगर आप पिछली करेक्टर ओरिएंटेड को देखें तो वहाँ पे हम लोगों ने जो करेक्टर इस्तेमाल किया था वो एक स्पेशल करेक्टर था जो कि टेक्स्ट के बीच में भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक स्पेसिफिक बिट्स को रिप्रेजेंट करके फ्रेम का हेडर और ट्रेलर को डिफाइन करवाया है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से स्टॉप होता है। तो ये जो फ्लैग हमने डिफ़ाइन किए हैं यहाँ पे, ये वही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमने बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल से पढ़े थे कि ये जो पैटर्न है ये आपका डाटा के बीच में भी आ सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने एग्जांपल देके शो करने की कोशिश की है कि जी कि मे बी ये आपके डाटा के बीच में इस तरह का फ्लैग क्रिएट हो सकता हो। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो हमें वी नीड टू समहाउ इन्फॉर्म द रिसीवर दैट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द फ्रेम, ताकि वो गलती से उसको ख़त्म ना कर दे कम्युनिकेशन को, या फ्रेम की रीडिंग बंद ना कर दें। वी डू दिस बाय स्टफिंग वन सिंगल बिट इंस्टेड ऑफ अ बाइट, तो हम लोग यहाँ पे एक बिट डालते हैं टू प्रिवेंट द पैटर्न फ्रॉम लुकिंग लाइक अ फ्लैग, ताकि वो फ्लैग की तरह ना दिखे। और इस स्ट्रेटजी को हम लोग बिट स्टफिंग बोलते हैं। सो इन बिट स्टफिंग अगर आपके पास सिफर आता है और उसके बाद 5 कंसेक्यूटिव वंस आते हैं, बिट आर इनकाउंटेड एंड एक्स्ट्रा ज़ीरो इज़ एडेड, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा ज़ीरो ऐड कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो हमारा जो फ्लैग था उसमें 6 1 थे, और यहाँ पे मैंने जिक्र किया है कि ज़ीरो के बाद अगर 5 1 आ जाएं तो हम एक ज़ीरो ऐड कर लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये ज़ीरो ऐड किया गया है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने स्टफ़ की थी वो रिमूव कर दी जाती है फ्रॉम द डाटा बाय द रिसीवर। नोट दैट द एक्स्ट्रा बिट इज़ एडेड आफ्टर 1 0 फॉलोड बाय 5 1 रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बिट, जो भी आगे आ रहा है। तो दिस गारंटीज दैट द फ्लैग फील्ड sequence जो हमने डाला है does not intentionally appear in the frame. The most important responsibilities of data link layer are flow control and error control. Collectively अगर हम देखें तो इन दोनों को हम लोग data link control बोलते हैं। तो error and flow is data link control. तो flow control की बात करते हैं। Flow control coordinates the amount of data that can be sent before receiving an acknowledgement and is one of the most important duties of the data link layer. In most protocols, flow control is a set of procedure that tells the sender how much data it can transmit before it must wait for an acknowledgement from the receiver. तो फ्लो कंट्रोल में हम लोगों का बेसिक मकसद ये होता है कि आपका रिसीवर कितने फ्रेम्स को रिसीव कर सकता है और सेंडर उसको किस स्पीड से भेजे और कितने फ्रेम्स एक साथ भेजे, ताकि वो उसको सक्सेसफुली कलेक्ट कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। द फ्लो ऑफ डाटा मस्ट नॉट बी अलाउड टू ओवरवेलम द रिसीवर, तो फ्लो इतना ज़्यादा ना हो कि जी आप लोग का रिसीवर जो है वो उसको संभाल ना सके।
Any receiving device has a limited speed at which it can process incoming data and a limited amount of memory in which to store incoming data. तो ये सब आपकी मेमोरी के ऊपर और जो डाटा लाइन है उसके ऊपर डिपेंड करता है. The receiving device must be able to inform the sending device before those limits are reached and to request that the transmitting device send fewer frames or stop temporarily. तो रिसीवर के पास कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो सेंडर को बता सके कि वो रुक जाए या अपनी ट्रांसमिशन को स्लो कर ले. तो इनकमिंग डाटा जो होता है उसको उसने चेक भी करना है, प्रोसेस भी करना है ताकि वो उसको आगे फॉरवर्ड कर सके. तो द प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो काफ़ी स्लो होता है और ट्रांसमिशन जो टाइम होता है बहुत तेज़ होता है. इस वजह से ईच रिसीवर डिवाइस हैज़ अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, इसको हम लोग बफर बोलते हैं, रिजर्व फॉर स्टोरिंग इनकमिंग डाटा अंटिल दे आर प्रोसेस. तो जब तक प्रोसेस नहीं होता मेमोरी में रखा जाता है, प्रोसेसिंग उस पर की जाती है. इफ़ द बफर बिगिंस टू फिल अप द रिसीवर मस्ट बी एबल टू टेल द सेंडर टू हॉल्ट ट्रांसमिशन, रोक दे, until it is once again be able to receive, जब तक कि प्रोसेसिंग वगैरह कंप्लीट होके वो दोबारा रिसीव करने की पोजीशन पर आ जाए. तो एरर कंट्रोल क्या होता है? एरर कंट्रोल इज़ बोथ एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन. तो डिटेक्ट भी करना है उसने और करेक्ट भी करना है. तो ये सारी प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है अगर ज़रूरत पड़ती है तो. इन द डाटा लिंक लेयर द टर्म एरर कंट्रोल रेफर्स प्राइमरली टू मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन एंड रीट्रांसमिशन. जबकि एरर कंट्रोल की बात करते हैं, डाटा लिंक लेयर इज़ ऑफन इम्प्लीमेंटेड सिंपली एनी टाइम एन एरर इज़ डिटेक्टेड इन एन एक्सचेंज स्पेसिफिक फ्रेम्स आर रीट्रांसमिटेड. तो जो आपके फ्रेम्स में अगर कोई प्रॉब्लम निकल आती है, कोई एरर निकल आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? रीट्रांसमिट करते हैं. द प्रोसेस इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. इसको ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट बोलते हैं, ARQ लिखा जाता है इसको. तो प्रोटोकॉल्स की बात कर लेते हैं. डाटा लिंक लेयर में हमारे पास कंबाइन है फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ताकि हम लोग अचीव कर सकें डिलीवरी ऑफ डाटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर. ये जो प्रोटोकॉल्स हैं आर नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर बाय यूजिंग वन ऑफ द कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो बुक में आपको इनके सूडो कोड्स मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग इस लेक्चर में उनको बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे. जो प्रोटोकॉल्स हैं आप लोगों के वो डिवाइड कर दिए गए हैं दो में. एक है जी आप लोगों के पास नॉइज़लेस चैनल जिसमें एरर फ्री होता है, जो कि आइडियल कंडीशन होती है. और जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं नॉइज़ी, जिसमें हम लोग एरर क्रिएट हो सकते हैं चैनल्स के अंदर. रियल टाइम पे हम देखते हैं चैनल्स को. द प्रोटोकॉल्स इन द फर्स्ट कैटेगरी कैनॉट बी यूज्ड इन रियल लाइफ बट दे सर्व एज अ बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोटोकॉल ऑफ नॉइज़ी चैनल. तो हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि जो हमने यहाँ पे सीखा होगा वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें. ठीक है. तो अगर हम लोग देखें कि हमारे पास नॉइज़लेस चैनल में सिर्फ सिंपलेस्ट है और स्टॉप एंड वेट है, और अगर हम नॉइज़ चैनल देखें तो हमारे पास स्टॉप एंड वेट है, गो बैक एन है और सेलेक्टिव रिपीट है. और इन सब के आगे आप देखेंगे तो ARQ लगा मिलेगा आप लोगों को, दैट इज़ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. क्योंकि इसमें जब हम एरर डिटेक्ट करेंगे तो हम लोग रीट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स भी करवाएंगे. तो वो क्या मेथड है वो देखेंगे आगे. तो इसमें एक पार्ट रह गया वो ये वाला, ये भी डिस्कस कर लेते हैं ये क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि रियलिटी में इस्तेमाल की जाती हैं, ऑल द प्रोटोकॉल्स वी डिस्कस आर यूनिडायरेक्शनल. एक डायरेक्शन में कम्युनिकेशन कर रहे हैं. इन द सेंस द डाटा फ्रेम्स ट्रेवल फ्रॉम वन नोड कॉल्ड द सेंडर टू अनदर नोड कॉल्ड द रिसीवर. ऑल दो स्पेशल फ्रेम्स हमारे पास में स्पेशल फ्रेम्स हैं जिसको हम लोग एक्नॉलेज बोलते हैं. ACK एक्नॉलेजमेंट वो होती है जब आपको एक फ्रेम मिलता है तो आप उसको रिटर्न करवाते हैं एक्नॉलेजमेंट की, जी मुझे फ्रेम मिल गया है. जब एक्नॉलेजमेंट आपको रिसीव होती है तो आप अगला फ्रेम भेजते हैं, अदरवाइज आप अगला फ्रेम नहीं भेज सकते. सिमिलरली अगर इसमें एरर आप लोगों के पास आ जाता है तो आप लोग उसको नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग NAK लिखते हैं. और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देखी जाए कैन फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब आप लोगों का जो रिसीवर है उससे जाएगा सेंटर की तरफ, और उसका मकसद सिर्फ एरर कंट्रोल करना है. तो रियल लाइफ की बात कर लेते हैं तो हम लोग देखेंगे कि जी डाटा लिंक प्रोटोकॉल्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट की जाते हैं बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में होते हैं. डाटा फ्लोज जो होता है वो बोथ डायरेक्शन में होता है. इस तरह के प्रोटोकॉल्स में फ्लो, एरर कंट्रोल, इन्फॉर्मेशन एक्नॉलेजमेंट, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट इंक्लूड होती है आप लोग डाटा फ्रेम्स के अंदर. और इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं पिगी बैकिंग. पिगी बैकिंग क्या होती है? मतलब आप लोगों का जो ट्रांसमीटर है रिसीवर है वो सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है. तो हम लोग जो है इस पूरी कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग बाई डायरेक्शनल की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा चीज़ें. हम यूनि डायरेक्शनल में ही रहेंगे, बताएंगे जी एक सेंडर और दूसरा रिसीवर है. ठीक है. तो अगर आप लोगों को यूनि डायरेक्शनल समझ आ जाता है कि एक रिसीवर है एक सेंडर है, तो आप लोग फिर उसको बाई डायरेक्शनल के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है. तो लेट्स फर्स्ट कंसिडर द नॉइजलेस चैनल्स, और हम देखेंगे कि जी के लेट्स अज्यूम कि वी हैव एन आइडियल चैनल जिसमें कोई भी फ्रेम लॉस्ट नहीं होता
और डुप्लीकेट नहीं होता और करप्ट भी नहीं होता। हम लोग दो प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस कराएंगे इस टाइप ऑफ चैनल के लिए। जो पहली प्रोटोकॉल है वो फ्लो कंट्रोल को यूज़ नहीं करता, जो सेकंड वन है वो इस्तेमाल करता है। दोनों के पास एरर कंट्रोल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम किया ही नहीं है कि एरर हम लोग कंट्रोल करवाएंगे, तो ये परफेक्ट है नॉइज़लेस चैनल के लिए। पहला जो हमारे पास है वो सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है, और इस प्रोटोकॉल में हमारे पास कोई फ्लो कंट्रोल नहीं है और कोई एरर कंट्रोल नहीं है, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यूनिडायरेक्शनल दिखाया गया प्रोटोकॉल, जहाँ पे डाटा फ्रेम्स आर ट्रेवलिंग इन ओनली वन डायरेक्शनल फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। इस प्रोटोकॉल में हम लोग जो हैं ये भी एज्यूम करेंगे जी कि जो हैंडलिंग ऑफ द फ्रेम्स हैं वो रिसीवर आराम से कर सकता है और उसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग का लोड नहीं है। द डाटा लिंक लेयर ऑफ द रिसीविंग इमीडिएटली रिमूव्स द हेडर फ्रॉम द फ्रेम एंड हैंड्स द डाटा पैकेट टू द नेटवर्क लेयर, और ऊपर लेयर्स को फॉरवर्ड कर देता है। सो लेट्स टॉक अबाउट बिट अबाउट डिज़ाइनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे देखें कि आपके पास जो नेटवर्क लेयर है वो पैकेट्स को तोड़ के फ्रेम्स बना के डाटा लिंक लेयर को देती है, जो कि बाद में फिजिकल लेयर को देती है और सेंडर की तरफ से वो सेंड किए जाते हैं रिसीवर को। रिसीवर जो होता है वो बिट्स को रिसीव करके उसके फ्रेम्स बना के आगे फॉरवर्ड कर देता है नेटवर्क लेयर को। ये सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिजिकल लेयर को चेक करें तो फिजिकल लेयर पे हमारे पास मल्टीप्लेक्सर भी हो सकते हैं, या हम लोग किसी भी तरीके से सिग्नलिंग करके यहाँ एक सेंडर से रिसीवर को डाटा भेज सकते हैं। तो अगर देखा जाए कि जी के सेंडर साइड भी देखा जाए तो नेटवर्क लेयर की तरफ से जब पैकेट्स को हम लोग तोड़ेंगे फ्रेम्स के अंदर तो वो इनिशिएट करेगा इस कम्युनिकेशन को, और रिसीवर साइड पे जब फिजिकल लेयर्स जो होगा वो रिसीव करेगा बिट्स को तो वो अपर लेयर्स को देगा, वो तो वो इनिशिएट करेगा ताकि कम्युनिकेशन फॉरवर्ड की जा सके या कम्युनिकेशन हो सके आपस में। तो ये आपकी सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल थी। लेट्स मूव ऑन टू स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, उसको देखते हैं उसमें हमारे पास क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल दिखाई गई है। तो इस प्रोटोकॉल में आपका जो रिसीवर है उसके पास आपके पास बफर है, और वो बफर में आपका डाटा को स्टोर कर सकता है। नॉर्मली देखा जाए तो रिसीवर के पास इतनी स्टोरेज नहीं होती है, स्पेशली इफ़ इट इज़ रिसीविंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। तो इसका हल ये है कि जी कि आपका जो रिसीवर होता है वो सेंडर को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करे कि जी या तो तुम स्लो डाउन हो जाओ या तुम अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ी देर के लिए रोक दो, और वो जो काम है वो यूजिंग अ फीडबैक या एक्नॉलेज करता है किसी ना किसी तरह, ठीक है, फीडबैक दिया जाता है सेंडर को। तो ये जो प्रोटोकॉल है जिसकी हम बात करें इसको हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल कहते हैं, क्योंकि इसमें सेंडर जो होता है वो सेंड्स वन फ्रेम करता है और स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है जब तक कि उसको रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती, और जब एक्नॉलेजमेंट आती है तो फिर उसके बाद वो नेक्स्ट फ्रेम को भेजता है। तो अगर देखा जाए तो स्टॉप एंड वेट के अंदर हम लोगों ने फ्लो कंट्रोल को हैंडल किया है, और जो कि पिछली प्रोटोकॉल में नहीं था हमारे पास क्योंकि वो आइडियल थी। तो अगर हम लोग इन दोनों के बीच में चैनल को कंसिडर करें तो चैनल में देख सकते हैं कि जी हमारे पास एक वक्त में या तो डाटा जो है वो सेंड किया जा सकता है जिसको हम लोग फॉरवर्ड चैनल बोलते हैं, या हम लोग उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं फ्रॉम द रिसीवर साइड। तो देखें तो हमें यहाँ पर नज़र आएगा कि हाफ डुप्लेक्स चैनल जो है वो यहाँ के लिए काफ़ी है, जिसमें एक वक्त में डाटा जाएगा और जहाँ से उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी उसी चैनल पे वापस, और फिर वो अगला डाटा या अगला फ्रेम दोबारा फिर सेंड कर सकता है। तो इस हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन को अगर हम देखें तो इस डायग्राम में अच्छी तरह दिखाया गया है। बहुत सिंपल है। द सेंडर सेंड्स वन फ्रेम एंड वेट्स फॉर द फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर। तो एक फ्रेम भेजा उसने और एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करता है फ्रॉम द रिसीवर। जब एक्नॉलेजमेंट पहुंचती है यहाँ पे हमारे पास द सेंडर सेंड्स नेक्स्ट फ्रेम, तो हम देखेंगे कि सेंडर जो है हमारे पास नेक्स्ट फ्रेम भेज सकता है। तो इस तरह की प्रोटोकॉल में हम देख सकते हैं कि अगर आपने दो फ्रेम सेंड करने हो तो आपके सेंडर की तरफ 4 इवेंट्स बनते हैं और आपके रिसीवर की तरफ 2 इवेंट्स बनते हैं, जिसमें उसने सिर्फ रिसीव किया, जबकि आपका जो सेंटर था उसने भेजा भी, रिसीव भी किया, भेजा भी और रिसीव भी किया। ओके, सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि जी बेसिक जो प्रोटोकॉल है हमारे पास नॉइजलेस चैनल की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नॉइजी चैनल, जहाँ पे आप लोग फ्लो कंट्रोल के साथ साथ एरर को भी कंट्रोल कर रहे होंगे। नॉइजी चैनल में हमारे पास जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो स्टॉप एंड वेट है, और हम देखेंगे कि स्टॉप एंड वेट के ऊपर हम लोग एरर कंट्रोल लगाएंगे, और जब हम ऑर्डर एरर कंट्रोल लगाएंगे तो हम उसके ऊपर एक चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ARQ। तो देखते हैं जी ARQ लगाने से हमारी जो प्रोटोकॉल है वो किस तरह डिटेक्ट कर सकती है एरर्स को और उनको किस तरह करेक्ट कर सकती है। डिटेक्शन ऑफ एरर्स हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था, अगर कुछ याद हो, जिसमें हम सिंपल पैरिटी की बात की थी हम लोगों ने। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, रिडंडेंसी ऐड करेंगे अपने बिट के ऊपर, डाटा के ऊपर, और जो फ्रेम होगा जब अराइव होगा रिसीवर के पास वो चेक करेगा उसको कि वो करप्टेड है कि नहीं है, और अगर करप्ट हुआ तो वो उसको साइलेंटली डिस्कार्ड कर देगा,
द डिटेक्शन ऑफ एरर इन द प्रोटोकॉल इज मैनिफेस्टेड बाय द साइलेंस ऑफ द रिसीवर। और आपको पता चल जाता है कि जी कि अगर आपने इसमें एरर निकल आया तो रिसीवर ने उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं दी। अगर रिसीवर ने उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं दी तो आपका जो सेंडर होगा वो वेट करेगा स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो वो दोबारा वही फ्रेम दोबारा सेंड कर देगा। तो यहाँ पे अगर नोट किया जाए तो हमारे पास जो फ्रेम है वो तीन वजूहत की वजह से करप्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपका सेंडर जो होगा वो फ्रेम दोबारा सेंड करेगा। नंबर वन, कि आपका जो फ्रेम है वो रिसीवर को मिला ही नहीं, वो रास्ते में करप्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं लॉस्ट इन ट्रांजिट। रास्ते में जाते जाते ख़राब हो गया और उसको रिसीव नहीं हुआ। सेकेंडली, आपका जो रिसीवर था उसने फ्रेम को रिसीव किया, उसमें उसको एरर मिला और उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया। तीसरी बात ये हो सकती है कि अगर आपको सब कुछ ठीक मिला, जो सेंडर ने फ्रेम आपको भेजे थे वो आपको बिल्कुल ठीक मिले, तो रिसीवर ने उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजी, और ऐसा हो सकता है कि एक्नॉलेजमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिट जाते हुए सेंडर के पास रास्ते में ख़राब हो गई या लॉस्ट हो गई, ट्रांसमिशन रीसेंड करना पड़ेगा सेंडर की साइड से। तो ये जो रीसेंड का प्रोसेस है ये बेसिकली टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, और जैसे उसका टाइम अप होता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि जी जिसमें हम पिंग की बात करते हैं कि टकरा के वापस आना, उसको टाइम पता होता है रिसीवर को जी कि रिसीव करने के बाद लेट सपोज प्रोसेसिंग डिले इतना रखा जाता है, और प्रोसेसिंग डिले के बाद अगर आपको फ्रेम जो है वो एक टाइम स्पैम के अंदर नहीं मिलता तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली रीट्रांसमिट कर देगा आपका सेंडर वही फ्रेम, और उस टाइम के दरमियान में आपको एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिली तब ही करेगा। अच्छा, तो अब ये कैसे पता चलेगा जी कि जो फ्रेम दोबारा सेंड किया है वो अगला फ्रेम है या वो वही वाला फ्रेम है जो कि उसने पहले भेजा था? तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा हो सकता है कि ट्रांजिट के बीच में आपको तो फ्रेम बिल्कुल ठीक ठाक मिल गया, लेकिन रिसीवर ने जब उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजी तो एक्नॉलेजमेंट जो थी वो सेंडर को मिली नहीं, तो सेंडर वही फ्रेम दोबारा भेज देगा ना। तो हाउ टू अंडरस्टैंड कीजिए कि वही फ्रेम दोबारा आया है या कोई नया फ्रेम आया है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस नंबर देंगे फ्रेम्स को, और वो सीक्वेंस नंबर्स होते हैं यूजुअली सिंपल ज़ीरोज़ एंड वन की फॉर्म में रखे जाते हैं। मतलब अगर आप पहला फ्रेम भेज रहे हैं तो वो ज़ीरो जाएगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट वन आएगी, ठीक है, फिर वो फ्रेम वन भेजेगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट ज़ीरो आएगी, तो इस तरह ज़ीरोज़ वन आगे पीछे चलते हैं। एक्नॉलेजमेंट के साथ ज़ीरो या वन लगा होगा, इसका मतलब है कि मुझे वो वाला फ्रेम भेजा जाए, पिछला फ्रेम बिल्कुल ठीक ठाक मुझे मिल गया। और सिमिलरली आपको अगर वन फ्रेम भेजा था सेंडर ने और आपको नेक्स्ट बारी में भी फ्रेम नंबर वन ही मिलता है, तो आप देखेंगे जी कि समथिंग वेंट रॉन्ग, और आप उस वाले फ्रेम को रख लेंगे और पिछले वाले को फ्रेम को डिस्कार्ड कर सकते हैं, और दोबारा आप एक्नॉलेजमेंट भेज सकते हैं कि जी फ्रेम ज़ीरो भेजा है जो कि नेक्स्ट फ्रेम है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फिगर, जहाँ हम लोग स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल को के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके डिज़ाइन को देखेंगे। तो देखें, द सेंडिंग डिवाइस कीप्स अ कॉपी ऑफ द लास्ट फ्रेम ट्रांसमिटेड until it receives an acknowledgement for the frame। तो वो अपने पास कॉपी रख लेता है जब तक उसको उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। अ डेटा फ्रेम यूज अ सीक्वेंस नंबर, तो हमारे पास डाटा फ्रेम्स इसमें हमारे पास सीक्वेंस नंबर्स होते हैं, जीरो एंड वन की हमने बात की पीछे। एन एक्नॉलेजमेंट फ्रेम यूजेज एन एक्नॉलेजमेंट नंबर, द सेंडर हैज़ अ कंट्रोल वेरिएबल विच इज़ कॉल्ड SN, तो हमारे पास यहाँ पे SN है, उसके पास कौन सा फ्रेम रिसीव हो चुका है, और फिर वो क्या करता है, सीक्वेंस नंबर को नेक्स्ट फ्रेम के साथ लगा के भेजता है, जो कि एक्नॉलेजमेंट के लिए वो भेजेगा कि जी अगला उसको कौन सा चाहिए। तो जो रिसीवर के पास अगर देखा जाए तो हमारे पास उसके पास भी कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, जो कि जिसको हम RN बोलते हैं यहाँ पे। वो एक्सपेक्ट करता है जी कि जब उसने यहाँ से ज़ीरो भेजा था तो एक्नॉलेजमेंट जब उसके पास वन की आएगी तो वो यहाँ पे वन की तरफ मूव कर जाएगा। तो जब भी आप लोगों को फ्रेम रिसीव होता है तो आप लोगों की वैल्यू ऑफ RN जो होती है वो इंक्रीमेंट कर दी जाती है, विच मीन्स दैट इफ़ इट इज़ ज़ीरो इट बिकम्स वन, और वाइस वर्सा इस तरह। तो अब हम लोग देखें कि हमारे पास जो सेंडर साइट है वहाँ पे तीन किस्म के इवेंट्स हो सकते हैं। वन इवेंट कैन हैपन एट द रिसीवर साइट, वेरिएबल SN पॉइंट्स टू द स्लॉट that matches the sequence number of the frame that has been sent but not acknowledged। RN जो है वो पॉइंट आउट करता है टू द स्लॉट that matches the sequence number of the expected frame। तो इसको टू फर्दर एनालिसिस लेट्स मूव ऑन एंड चेक आउट द एग्जांपल। और इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे जी कि हमारे पास जो डाटा है वो किस तरह मूव किया जा रहा है। स्टॉप एंड वेट ARQ है हमारे पास, फ्रेम ज़ीरो इज सेंट यहाँ पे, और हमारे पास उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है, एक्नॉलेजमेंट वन की आती है, वो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट करता है और पिछले वाले को पर्च करता है, जिसको मतलब है कि एक्सपेल कर देता है। और फ्रेम जो है वो आपकी एक्नॉलेजमेंट होती है,
और दोबारा फ्रेम भेजा जाता है। और फ्रेम देखें रास्ते में लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, बीच में वो फ्रेम जो था वो ख़राब हो गया, तो वो उसको नहीं मिल सका रिसीवर साइड को। तो सेंडर को उसका कोई आइडिया नहीं है जी कि फ्रेम जो है वो मिला कि नहीं मिला। तो क्या वो जब टाइमर आपका आउट हुआ तो उसने वही फ्रेम दोबारा से सेंड कर दिया विद इन द टाइम लिमिट्स, ठीक है। और जो फ्रेम उसने भेजा यहाँ पे उसकी एक्नॉलेजमेंट उसको यहाँ पे मिल गई और फिर उसने उसको इंक्रीमेंट कर देना है। ओके, इस डायग्राम में हमें स्टॉप एंड वेट के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है, और वो प्रॉब्लम है हमारे पास एफिशिएंसी की। अगर देखा जाए कि जी के इनएफिशिएंसी के लिहाज से जो हमारे चैनल थे उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक थिक और एक लॉन्ग। जब हम थिक की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बैंडविड्थ बहुत लार्ज है, ठीक है। और बाय लॉन्ग हमारा मतलब है कि लॉन्ग राउंड ट्रिप टाइम जो है वो बहुत लंबा है। तो या तो बैंडविड्थ बहुत मोटी हो सकती है और आप डाटा बहुत थोड़ा सा भेज रहे हो उसके अंदर, या डाटा जो है वो बहुत दूर तक जाना है, ठीक है। तो उस लिहाज से हमारे पास इनएफिशिएंसीज नज़र आएंगी। तो अगर इन दोनों को नोट किया जाए तो इनको हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था अगर आपको याद हो। तो अगर हम लोगों ने बैंडविड्थ को सही तरह यूटिलाइज़ नहीं किया तो सिस्टम विल बी इनएफिशिएंट, ठीक है। तो यही मेजर है बिट्स का जो कि हम लोग सेंड कर सकते हैं सिस्टम के अंदर वाइल वेटिंग फॉर न्यूज़ फ्रॉम द रिसीवर। जब तक कि रिसीवर हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं कहता उस जब तक हम लोग बैठ के इंतज़ार करते रहते हैं। और इस किस्म की जो एफिशिएंसी थी मैं बस ट्रांसमिशन में इसको फुलफिल करने के लिए फिर हमारे पास एक और टेक्निक आती है, इसको हम लोग बोलते हैं गो बैक एन, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इसका जो मैं फ़ायदा वो ये कि जी कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग जस्ट वन फ्रेम हम लोग मल्टीपल फ्रेम्स भेज सकते हैं एक लाइन के ऊपर, ताकि हम चैनल को बिजी रख सकें वाइल द सेंडर इज़ वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट। सो द फर्स्ट प्रोटोकॉल इज़ कॉल्ड गो बैक एन। जो प्रोटोकॉल है कैन सेंड सेवरल फ्रेम्स बिफोर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट। इसमें हम लोग कॉपी रखते हैं फ्रेम्स की जब तक हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती उनकी। तो फ्रेम्स फ्रॉम असेंडिंग स्टेशन और नंबर सीक्वेंशली, और वो जो सीक्वेंस होता है वो हम लोग हेडर में डाल देते हैं फ्रेम्स के। एंड वी नीड टू सेट अ लिमिट एज वेल। तो जो हेडर में हमारे पास कितने फ्रेम्स होते हैं ये डिपेंड करता है जी कि एक वैल्यू एम होती है हमारे पास, विच इज़ बेसिकली ये जो नंबर एम हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बेसिकली हाउ मैनी फ्रेम्स ऑफ रिसीवर कैन फिट इन मेमोरी। तो ये यूजली कंसिडर किया जाता है लेट्स सपोज 2 की पावर m के लिहाज से, और इसके साथ हम लोग -1 भी लगाते हैं। -1 का मतलब है कि हम लोग इसको बेसिकली जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग कोडर हैं, इफ़ यू हैव डन सम कोडिंग, तो आपको पता होगा वैल्यू को जीरो से स्टार्ट करने के लिए हम लोग -1 लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेट सपोज करें जी कि हमारे पास m की वैल्यू 4 थी, तो 2 की पावर 4 इज़ अबाउट 16 और 16 - 1 इज़ 15। तो 0 से लेकर 15 तक हम लोग 16 फ्रेम्स भेज सकते हैं, जो कि उसने यहाँ पे शो कराया है 0 से लेकर 15 तक। तो ये जो नंबर्स हमने 0 से लेकर 15 तक इंक्लूड करवाए हैं यहाँ पे, ये रिपीट हो सकते हैं। तो अगर आपके पास फ्रेम्स लेट सपोज 30 फ्रेम आ रहे हैं तो आपके पास लेकर 0 से लेकर 15 तक, फिर उसके बाद 0 से लेकर 15 तक चलता जाएगा अंटिल आप जब तक ये ट्रांसमिशन ख़त्म नहीं होती ना। इस ट्रांसमिशन के अंदर हम लोग 0 से लेकर 15 तक सारे के सारे फ्रेम्स जो होते हैं वो एक साथ सेंड नहीं करते होते। कुछ लिमिटेशन देखी जाती है बेस्ड ऑन द रिसीवर। तो हम लोग क्या करते हैं उसमें से जो तरीका है इसका अंडरस्टैंड करने का कितने फ्रेम्स भेजे जा सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। तो स्लाइडिंग विंडो देखते हैं, बेसिकली TCP प्रोटोकॉल से लिंक्ड है। तो लेट्स डिस्कस स्लाइडिंग विंडो। तो इस टेक्निक के अंदर हमारे पास रिसीवर साइड के पास एक विंडो होती है जिसमें आपके पास 15 का यहाँ पे उसने रखा हुआ है, उसके पास फ्रेम्स हो सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास रिसीवर साइड पे भी स्लाइडिंग विंडो का एक फ्रेम्स विंडो होती है जिसमें हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना होता है कितने फ्रेम्स हम लोगों को मिल चुके हैं और कितने फ्रेम्स आगे आने वाले हैं। तो जो सेंडर होता है वो फ्रेम्स को भेजता है, तो आपकी जो विंडो होती है यहाँ पे श्रिंक कर जाती है। जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिलती है यहाँ से रिसीव होने के बाद, तो वो क्या करता है दोबारा एक्सपैंड कर लेता है अपनी वापस 15 के ऊपर, और उसके बाद फिर दोबारा मल्टीपल फ्रेम्स जो होते हैं वो सिलेक्ट किए जा सकते हैं। और मल्टीपल फ्रेम्स की सिलेक्शन जो होती है वो लाजमी नहीं है 15 की 15 सारे सारे जाएँ, जबकि वो उससे कम भेजता है ताकि हमारे पास ज़्यादा चांसेस हों फ्रेम्स को पहुंचने के विदाउट एनी एरर। तो हम लोग उसमें 3 फ्रेम भी भेज सकते हैं, 4 फ्रेम भेज सकते हैं, 5 फ्रेम भेज सकते हैं, 6 फ्रेम भी भेज सकते हैं। तो यूजली डाटा इसी तरह फॉरवर्ड किया जाता है। तो अगर आप ये डायग्राम देखें तो आपको इसमें नज़र आएगा कि जी हमारे पास इसमें 3 सेक्शन नज़र आएंगे। पहले सेक्शन में आपको नज़र आएगा कि ये वो वाले फ्रेम्स हैं जो कि भेजे जा चुके हैं, एक्नॉलेज हो चुके हैं। ये वो वाले फ्रेम्स हैं
जो कि भेजे जा चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक स्टेटस अननोन है कि वेदर इनमें से कोई एरर तो नहीं आ गया, बीच में गुम तो नहीं गए। और ये वाले हैं जो कि उसने भी आगे फॉरवर्ड करने हैं, जो कि रिमेनिंग रहते हैं। और चौथा सेक्शन अगर देखा जाए तो वो इस लिहाज देखा जा सकता है कि ये जो पूरी विंडो है आपकी, इसमें ये जो पार्ट 4 है ये इंक्लूडेड नहीं हुआ अभी तक। कि जब एक्नॉलेज करेगा इनसे एक्नॉलेजमेंट आएगी इसको, तो फिर ये विंडो को एडवांस करेगा। यहाँ इसको वर्ड इस्तेमाल किया था एडवांस का, विंडो एडवांस करेगा और फिर ये जो मज़ीद जो आगे फ्रेम्स हैं ये इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो ये भी इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपका जो रिसीवर होता है वो फ्रेम 1, फ्रेम 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी फ्रेम्स उसने भेजे हैं, हर एक के अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट का एक टाइमर रखता है, विंडो रखता है टाइमर की। तो अगर उसको एक टाइम के अंदर फ्रेम 1 की एक्नॉलेजमेंट आ गई तो ठीक है, अगर एक और टाइम के अंदर फ्रेम 2 की एक्नॉलेजमेंट आ गई तो इट्स ओके। अगर उसको फ्रेम 3 के एक्नॉलेजमेंट टाइम के अंदर फ्रेम 3 की एक्नॉलेजमेंट नहीं आती, तो वो क्या करेगा, 3 से ऑनवर्ड सारे फ्रेम्स दोबारा भेज देगा। तो टाइमर इसमें इस तरह काम करता है पर फ्रेम के लिहाज से। तो उस एग्जांपल में गो बैक एन का मतलब ये होता है कि जी कि जो आप लोगों का टाइमर टाइम के अंदर फ्रेम रिसीव नहीं होता है, तो वो उतने गो बैक एंड कॉपी जो उसके पास रखे होते हैं वो वहाँ से फिर आगे फॉरवर्ड ऑनवर्ड जो है वो फ्रेम्स को फॉरवर्ड कर देता है। तो इस एग्जांपल से आप लोगों को एक और चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आती है, वो ये है कि अगर आप देखें कि हमारे पास जो सेंडर है वो तो फ्रेम्स बिल्कुल ठीक भेज रहा है यहाँ से रिसीवर के पास, लेकिन रिसीवर के पास जो फ्रेम वापस आ रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर देखा जाए कि इसमें इस सिनेरियो में हम लोग रीड ट्रांसमिशन नहीं करते, क्योंकि अगर आप देखें तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ 3 हमें बिल्कुल ठीक मिल गई। जब एक्नॉलेजमेंट ऑफ 3 में बिल्कुल ठीक मिल गई तो इसका मतलब ये कि फ्रेम 2 हमें बिल्कुल ठीक मिल गया, और ये जो टाइम हम लोगों को इसका ज़ाया हुआ एक्नॉलेजमेंट के अंदर जो रिसीव नहीं हुआ, तो उसको इसने ओवरकम कर लिया एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 ने। तो इस एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास फॉरवर्ड चैनल जो है वो रिलायबल है, लेकिन जो हमारा रिवर्स चैनल है जो कि एक्नॉलेजमेंट्स को लेकर आ रहा है वो इतना रिलायबल नहीं है, उसमें डिलेज हमारे पास आता है और हमारे पास एक्नॉलेजमेंट्स लॉस्ट हो रही हैं। सो एग्जांपल नंबर 2 जो है गो बैक एन ए आर क्यू में अगर हम देखें, हमारे पास जो फॉरवर्ड चैनल है वो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जबकि हमारे पास जो रिवर्स चैनल इसमें एक्नॉलेजमेंट आती है वो हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तो जो आपका सेंडर था उसने 6 फ्रेम्स भेजने थे, 0 से लेकर 6 तक 6 फ्रेम भेजने थे। उसने फ्रेम 0 भेजा, उसकी एक्नॉलेजमेंट उसको टाइम के अंदर मिल गई, लेकिन जो फ्रेम 1 था वो रास्ते में जाते हुए ही ख़राब हो गया। तो आप देखें कि उसने जब रिसीव फ्रेम 2 किया तो उसने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। फ्रेम 3 भी उसको मिला लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि जितनी देर में ये दो प्रोसेसिंग हो रही थी इतनी देर में इसको सेंडर को जो फ्रेम 1 था इसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। तो इसने क्या किया, गो बैक एन गया और वापस 1 से दोबारा सेंड करना शुरू कर दिए। तो जब 1 से स्टार्ट करना शुरू किया उसने, तो फिर यहाँ पे उसको देखेंगे कि आप लोगों को फ्रेम 1 भी मिला, 2 भी मिला, 3 मिला, तो उसने फिर उनकी एक्नॉलेजमेंट करना शुरू कर दी और फिर इस तरह प्रोसेस आप लोगों का चलता जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका रिसीवर है वो जो नो एक्शन ले रहा है उसके बाद बेसिकली वो टाइमर रोक रहा है वहाँ पे, और ताकि वो फ्रेम्स दोबारा रिसेंड हो सकें। तो अगर हम इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करें कि जी गो बैक एन में और स्टॉप एंड वेट जो पीछे हमने ए आर क्यू पढ़े उसमें इनमें फ़र्क क्या है, तो उसमें फ़र्क यही है कि हमारे पास कि जी गो बैक एन ए आर क्यू जो है उसमें हमारे पास सिर्फ 2 सीक्वेंस थे, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स थे जो कि हम लोग फ्रेम के साथ लगाए थे, जबकि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल नंबर्स लगा के डाटा सेंड कर रहे हैं। बाकी प्रोसीजर वैसे ही चल रहा है। So let's move on and let's talk about selective repeat, automatic repeat request ARQ. Go back and ARQ simplifies the process at the receiver side. तो हमारे पास receiver side जो है वो go back and की वजह से काफ़ी simplify होती है. The receiver keep track of only one variable and there is no need to buffer out of order frames. They are simply discarded. However, this protocol is very inefficient for a noisy link. In a noisy link, a frame has a higher probability of damage, which means the resending of multiple frames. तो पिछले वाले केसेस में हम लोग आउट ऑफ ऑर्डर जो फ्रेम्स थे उनको हम लोग अपने पास रखते ही थे सिंपली। जो अगर हमारे पास 1 रिसीव नहीं हुआ और 2 आ गया तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते थे और टाइमर एंड होता था तो वही फ्रेम्स दोबारा मिल जाते थे। तो अगर एक ऐसा हमारे पास नॉइजी चैनल है जहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डैमेज होने की बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स द रीसेंडिंग ऑफ मल्टीपल फ्रेम्स, तो हमारे पास मल्टीपल फ्रेम्स दोबारा भेजने पड़ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, दिस रीसेंडिंग यूजेस अप द बैंडविड्थ एंड स्लोज डाउन द ट्रांसमिशन. For noisy links, there is another mechanism that does not resend n frames,
व्हेन जस्ट वन फ्रेम इज़ डैमेज। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया मेथड सिलेक्टिव रिजेक्ट, और उसमें हम लोग जो फ्रेम हमारा रिजेक्ट होगा हम सिर्फ वही दोबारा रिसेंड करेंगे, बाकी फ्रेम्स हम लोग जो रिसीव हो गए उनको रिसीव रहने देंगे, दोबारा सेंड नहीं करेंगे। तो ये जो मेथड है ज़्यादा एफिशिएंट है नॉइजी लिंक्स के ऊपर, लेकिन इसमें एक चीज़ का मैं प्रॉब्लम है, वो ये है कि प्रोसेसिंग रिसीवर पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो सिलेक्टिव रिपीट जो है हमारे पास, उसके पास बेसिकली टू विंडोज़ होती हैं, एक सेंडिंग विंडो होती है, एक रिसीविंग विंडो होती है। हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द विंडो इन दिस प्रोटोकॉल एंड द वंस इन गो बैक एन। तो मुख्तलिफ किस्म की है, गो बैक एन की तरह काम नहीं करती। पहली बात की बात करते हैं, साइज ऑफ द विंडो इज़ मच स्मॉलर। इसमें हमारे पास जो साइज़ होती है वो छोटी रखी जाती है, गो बैक एन में हम लोगों ने साइज़ बड़े रखे हुए थे। छोटे रखने की वजह क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। सेकंड इसमें जो चीज़ है वो है रिसीव विंडो जो होती है इज़ द सेम साइज एज सेंड विंडो। तो रिसीव और सेंड विंडो सेम रखी जाती हैं। तो रिसीविंग विंडो जो होती है सिलेक्टिव रिपीट में वो डिफरेंट होती है, गो बैक एन की तरह नहीं होती। फर्स्ट, द साइज ऑफ रिसीव विंडो इज़ द सेम एज द साइज ऑफ द सेंड विंडो। सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल जो होती है अलाउ करती है एज मैनी फ्रेम्स एज द साइज ऑफ द रिसीव विंडो टू अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, और उनको वहाँ रखती है अपने पास विंडो के अंदर जब तक कि सारे ऑर्डर के अंदर नहीं आ जाते, फिर उनको आगे नेटवर्क लेयर पे फॉरवर्ड कर देती है। बिकॉज द साइज ऑफ द सेंड विंडो एंड रिसीव विंडो आर द सेम, all the frames in the send window can arrive out of order and can be stored until they are delivered to the network layer. We need, however, to mention that the receiver never delivers packets out of order to the network layer. तो इस फिगर में अगर आप देखें तो वहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो कलर्ड नज़र आ रहे हैं ये जो है अभी तक ये आउट ऑफ ऑर्डर हैं, और ये हमें रिसीव नहीं हुए 3, 5, 6, 7, 8, 10। तो जब ये 3, 4, 5, 6, 7 हम फिर रिसीव हो जाएंगे तो हम इनको जब ऑर्डर में आ जाएंगे तो फिर हम इनको फॉरवर्ड कर सकते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। डिज़ाइन देखा जाए तो इसका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल गो बैक एन की तरह है, लेकिन कुछ थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जी के जो आपका टोटल साइज़ था, लेट्स सपोज 2 की पावर 4 था, 15 अगर हम फ्रेम्स भेज सकते हैं तो हम उसका आधा क्यों रखते हैं सिलेक्टिव रिपीट के अंदर। उसकी एक वजह है, लेट्स सपोज अगर हम लोग चूज़ करते हैं एम की वैल्यू 2, तो उसका मतलब ये हुआ कि जी के विंडो जो होगी वो 2 की पावर m डिवाइड बाई 2 होगी, जो कि हमारे पास अगर हम देखें तो वैल्यू 2 बनती है। तो नेक्स्ट फिगर जो होगी वो हमें हेल्पफुल होगी बताने में कि जी के अगर हम कंपेयर करें विंडो साइज़ ऑफ 2 विद विंडो साइज़ ऑफ 3, तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें कि हमारे पास जो विंडो साइज़ है वो 2 है और उसने 2 फ्रेम्स भेजे सेंडर ने और वो रिसीव हो गए, लेकिन एक्नॉलेजमेंट जो थी वो दोनों की नहीं मिल सकी। तो जब एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली तो सेंडर ने टाइम आउट होने पे एक्नॉलेजमेंट ना मिलने के ऊपर उसने 0, 1 दोबारा भेज दिया, जबकि आपका जो रिसीवर था वो वेट कर रहा था 2 और 3 का कि ये 2 और 3 उसको मिलेंगे अब नेक्स्ट। तो ये जो उसको दोबारा 0, 1 मिल गया तो उसने उसको क्या किया, उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया और उसने कहा जी कि ये तो फ्रेम मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं, मैं तो 2 का वेट कर रहा हूँ, तो वो उसको रिसीव नहीं करेगा, छोड़ देगा। वेयर एज अगर हम लोग देखें कि हमारे पास यही विंडो साइज़ अगर 3 पे रख ली जाती और हमारी 0, 1, 2 जितनी भी हमारे पास डाटा हमने सेंड किया है वो रास्ते में जाते हुए एक्नॉलेजमेंट उनकी ना रिसीव होती, तो क्या होगा, उनका टाइमर जो होगा वो जब टाइम आउट होगा तो आपके सेंडर को रिसीव नहीं हुई एक्नॉलेजमेंट 0, 1, 2, 3 की, तो उसने क्या किया, उसने 0, 1, 2, 3 दोबारा भेज दी, फ्रेम्स दोबारा भेज दिए। और अगर आप देखें कि आपका जो रिसीवर था वो एक्सपेक्ट कर रहा था जी कि आपके फ्रेम्स 301 मिलना था, तो वो उनको दोबारा आउट ऑफ ऑर्डर में रख के उनको रिसीव करना शुरू कर देगा, और इस तरह जो पहले 3 फ्रेम्स थे ये वही रिपीट हो जाएंगे यहाँ पे आपके पास, जो कि ट्रांसमिशन के लिहाज से देखा जाए तो ये एक एरर बनेगा। तो ये रीज़न है कि जी हम लोग जो हैं वो जब हाफ़ करते हैं आपकी विंडो को, तो हम लोग सारे फ्रेम्स जो होते हैं वो एक साथ नहीं भेजते, क्योंकि उसमें फिर हमारे पास ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये गो बाय कैन की तरह काम करती है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि अराइवल इवेंट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड है, जो अराइवल है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्नॉलेजमेंट जब आती है आप लोगों की तो हम उसको फ्रेम्स आगे फॉरवर्ड कर देते हैं जब, लेकिन जब हमारे पास नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आती है तो भी हम लोग सिर्फ वही फ्रेम्स प्रेजेंट करते हैं जो कि नेगेटिवली एक्नॉलेज किए गए हैं। इफ़ अ वैलिड एक्नॉलेजमेंट अराइव्स वी यूज़ अ लूप टू पर्ज द बफर्स। तो हम लोग जो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आती है तो हम लोग जो हमारे पास फ्रेम कॉपी हुए पड़े होते हैं बफर के अंदर सेंटर साइड पे, उसको हम लोग निकाल देते हैं और हम लोग विंडोज़ को आगे मूव कर लेते हैं। द टाइम आउट इवेंट इज सिंपलर है,
ओनली द फ्रेम विच टाइम्स आउट इज़ रिसेंट, तो हम लोग वही फ्रेम्स दोबारा भेजते हैं जिनका हमारे पास एक्नॉलेजमेंट टाइम के ऊपर नहीं मिलती. So the author of the book has actually showed some examples of selective repeat, automatic repeat request. उनको पढ़िएगा, उसमें देखिएगा कि उसने जो प्रॉब्लम्स हैं या उसमें जो उसने सिनेरियोज डिस्कस किए हैं उनमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. और वी विल डिस्कस इट लेटर इन आवर डिस्कशंस जब क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी. तो आज के लिए यहाँ तक ही, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए. टिल नेक्स्ट वीक. ओके, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.